Hello, class 9th students. Today I am going to take the very first chapter of your textbook Beehive. The chapter's name is The Fun They Had. As I am already introduced to you, myself, Narendra Sharma, your English teacher, I am going to take this chapter. So, pay your attention. This is your textbook, Beehive, the very first chapter, The Fun They Had, I am going to take today. Here in this chapter, the writer Isaac Asimov just predicted about the school of future. Means what kind of schools will be there in future. Okay. So nowadays we are having schools. School is having a building. All the students go to school. They do their study work in the classrooms. A teacher is there in the class. There are different teachers for different subjects. So this is the present scenario of our school. But here in this chapter, the writer is telling us about what will be the form of school or what kind of school will be there in future, say about 2157. There might be virtual classrooms. Virtual means not real but likely to be real. There might be moving e-tabs. There might be robotic teachers. The students might be learning through computers. Okay. So the fun they had, the title means वो मौज मस्ती या वो मजा जो उन्होंने लिया. Okay. The story we shall read is set in the future. इस पाठ में जिस कहानी की परिकल्पना की गई है उसे भविष्य के हिसाब से लिया गया है. When the books and schools as we know them will perhaps not exist. जब किताबें और स्कूल जिनके बारे में हम जानते हैं उनका शायद अस्तित्व ना रहे. How will children study them? तो फिर आपके माइंड में एक प्रश्न उठता है कि बच्चे फिर किस तरह से पढ़ाई करेंगे. The diagram below may give you some idea. I have just told you about moving e-tabs, virtual classrooms, learning through computers, robotic teachers. Okay, so this is the future scenario of the schools. Okay. So let us start this chapter. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, he wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी की स्टूडेंट है जिसकी आदत है डायरी लिखने की. तो एक दिन उसने 17 मई 2157 को डायरी में अपनी डायरी के पेज के ऊपर लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली. इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक. ये एक बहुत पुरानी सी किताब थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, that when he was a little boy,
कि जब वो एक छोटे लड़के थे, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed. उसके दादाजी जब छोटे बालक थे तो उन्होंने जो है उसको इस बात को बताया था, मार्गी को, कि एक समय ऐसा था कि जब सारी कहानियां, सारे पाठ, सारी विषय वस्तु पाठों की वो कागज के ऊपर छपी हुई होती थी किताब के रूप में. They turned the pages, which were yellow and crinkly. Now Margie and her brother Tommy. Margie was 11 years old, Tommy was 13 years old. So both of them, they were busy turning the pages. दोनों बच्चे उस किताब के पन्नों को पलट रहे थे, which were yellow and crinkly, जो कि पीले पड़े हुए थे पुरानी किताब होने के कारण, और उनमें कागजों में सर पड़े हुए थे. They were having many folds or lines in those pages, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और वो भयानक रूप से उनको ये बात मजाकिया प्रतीत हो रही थी कि उस किताब में छपे हुए स्थिर शब्दों को, शब्द जिनमें कोई हलचल नहीं थी, उनको वो पढ़ रहे थे, जबकि उनके समय में यानी कि 2157 के समय में जब वो पढ़ रहे थे तो उनको वर्ड्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर चलते हुए प्रतीत होते थे. ओके, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट. और फिर जब उन्होंने उस किताब के पिछले पन्नों को दोबारा से पलटा तो उसमें वही शब्द थे जो कि पहले वो देख चुके थे. That it had when they read it the first time. तो पहली बार उस किताब के पृष्ठों में छपे हुए जो शब्द उन्होंने देखे थे, बाद में जब उन शब्दों को उन्होंने देखा तो वो उसी तरह से समान थे. Gee, said Tommy. Gee is a word to show exclamation of wonder. Okay, आश्चर्य प्रकट करने के लिए शब्द. What a waste when you are through the book, you just throw it away. ये समय की कितनी बर्बादी तुम कर रही हो. टॉमी ने कहा अपनी बहन मार्गी से कि जब तुम इस किताब के पन्नों को पलट रही हो, मेरा तो ये सुझाव है कि तुम इस किताब को फेंक दो. आई गेस, मेरा ऐसा अनुमान है. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड a million books on it. हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है उसके अंदर लाखों की तादाद में पुस्तकें पहले से ही फीड की हुई हैं. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. और ये कई मायनों में प्रचुर मात्रा में विद्यार्थियों के लिए ज्यादा अच्छी. आई वुडंट थ्रो इट अवे. ओके. Then Tommy said to his sister Margie that he would not like to throw away that book. Same with mine, said Margie. She was 11. और ऐसे विचार मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं, मार्गी ने कहा. मार्गी एक 11 वर्षीय बालिका थी. He hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. और मार्गी ने जो है इतनी ज्यादा बुक्स अवेलेबल ऑन टेलीविजन ओके नहीं देखी थी जितना कि टॉमी देख चुका था, क्योंकि टॉमी जो है मार्गी से 2 साल उम्र में बड़ा था. उसकी उम्र 13 साल थी. She said, where did you find it? उसने कहा, मार्गी ने अपने भाई टॉमी से कहा कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिली. इन माई हाउस. ठीक है. तो टॉमी ने जवाब दिया कि मेरे घर के अंदर मुझे ये किताब मिली.
He pointed without looking. उसने इशारा करते हुए कहा, because he was busy in reading that book, क्योंकि वो उस किताब को पढ़ने में व्यस्त था, कि I got this book in the attic. Attic means a space just below the roof, used as a store room. जो पिंजरी होती है मकान में, छत पर जाने के लिए रास्ते के कवर करके दरवाजा वगैरह लगा के कुछ फालतू वगैरह सामान वगैरह रखने के लिए ऐसी पिंजरी बना दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एटिक। तो उसने इशारा करते हुए कहा कि मेरे घर की पिंजरी में ये किताब मुझे प्राप्त हुई। व्हाट इज इट अबाउट? ये किताब किस बारे में है? स्कूल। ये किताब स्कूल के बारे में दोनों भाई बहनों में इस तरह की बातचीत चल रही है। Margie was scornful. School. After hearing the word school, right, Margie was having the feeling of hatred. Scornful means नफरत की भावना से भरा हुआ। What is there to write about school? स्कूल के बारे में लिखने जैसी क्या बात है? I hate school. मार्गी ने कहा कि मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब इसकी नफरत जो थी वो पहले से भी और अधिक बढ़ चुकी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर था वो एक के बाद एक टेस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर फीड करके उसको जो मैकेनिकल टीचर के द्वारा जो सब्जेक्ट मैटर तैयार किया गया था, तो ज्योग्राफी विषय के अंदर बार बार मैकेनिकल टीचर उसके टेस्ट ले रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स। और उन टेस्ट में मार्गी की परफॉर्मेंस खराब और अधिक खराब होती जा रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully. जब उसकी माँ आई, उसने देखा कि उसकी बेटी की ज्योग्राफी टेस्ट में मार्क्स बहुत पुअर आ रहे हैं, तो उसने दुख पूर्वक उसका सिर हिलाया। एंड शी थॉट, और उसने सोचा कि देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विद द मैकेनिकल टीचर, एंड दैट्स व्हाई शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और इसलिए उसने जो मैकेनिकल टीचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला था, उसके फॉल्ट को रिमूव करने वाला था, काउंटी इंस्पेक्टर, उसको उसने बुलाने के लिए संदेश भेज दिया। He was a round little man with a red face and a whole box tools with dials and wires. वो एक गोल मटोल छोटे कद का मोटा सा व्यक्ति था। उसके चेहरे का रंग बादामी कलर का था, और जब वो आया तो उसके साथ जो है ए बॉक्स फुल ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अपने साथ एक बड़े सा बक्सा लेके आया जिसके अंदर उसके औजार वगैरह थे, और साथ ही कुछ मेजरिंग डायल्स और तार इत्यादि थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। आते ही वो मार्गी को देखकर उसकी तरफ मुस्कुराया और उसको खाने के लिए उसने एक एप्पल यानी कि सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट। फिर वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उस मैकेनिकल टीचर को जो है वहां से हटा के अलग दूसरे स्थान पर ले गया। मार्गी हैड हॉप, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को ऐसे आशा थी कि शायद काउंटी इंस्पेक्टर ये नहीं जानता होगा कि इसको वापस से ठीक करके कैसे लगाया जा सकता है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड देन आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन। लेकिन वो जानता था कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, और लगभग 1 घंटे से के लगभग समय के बाद उस पार्ट को काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा वापस से कंप्यूटर के अंदर लगा दिया गया। लार्ज ब्लैक एंड अगली विद बिग स्क्रीन on which all the lessons were shown. तो वहाँ पे उस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बड़े से काले
बंदे से दिखाए जाने वाले शब्द जो है वापस से टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर विजिबल होने लगे, दिखाई देने लगे. Right? All the lessons were visible on the screen of the computer, and after the chapter the questions were asked. That wasn't so bad. Okay. अब वो इतना खराब प्रतीत नहीं हो रहा था. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. कंप्यूटर का वो भाग जिससे सबसे अधिक नफरत करती थी मार्गी, वो एक पर्टिकुलर गिवन स्पेस था, स्लॉट, जहाँ पर वो उसका होमवर्क सबमिट किया करती थी. और she always had to write them out in punch card. They made her lesson when she was 6 years old. मार्गी को हमेशा जो स्लॉट के अंदर अपना होमवर्क सबमिट करना होता था, that was written in punch code, means it was written in the language of the computer, okay, in the form of punch code. And she was already taught how to write words by using punch code when she was simply 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. Since it was a mechanical teacher, after the homework or the test paper was submitted in the slot given in the computer, the marks were awarded within no time. Okay, allocation of marks was within no time by the computer. The inspector had smiled after he had finished and patted Margie's head. The county inspector, after the completion of work, gave just a smile when he finished his work of setting right the computer. And after he completed the work of the maintenance or repairing work of the computer, he just patted on Margie's head. Okay, उस सर पे हाथ रखकर थपथपाते हुए उसे शाबाशी दी. He said to her mother, ये काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की माँ से कहा, it is not the little girl's fault. ये इस छोटी बालिका की गलती नहीं थी. मिसेस जॉन्स, मार्गी की माँ का नाम. I think the geography sector was geared allotted to. काउंटी इंस्पेक्टर का ऐसा सोचना था कि जो ज्योग्राफी वाला भाग था उस कंप्यूटर का, वो गलती से उसकी क्लास स्टैंडर्ड से ऊपर के स्टैंडर्ड का जो है चिंतापूर्वक सेट किया जा चुका था. Those things happen sometimes. ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं. I have shot it up to you. An average. I have solved it up to an average 10-year level. मैंने अब इसको 10 साल के बालक के बौद्धिक स्तर पर इसको सेट कर दिया है. Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory. वास्तव में कुल मिलाकर इसका जो प्रदर्शन है कंप्यूटर क्लास के अंदर वो बिल्कुल संतोषजनक है. Means Margie was not an intelligent student, she was like an average student. That's why her performance was quite satisfactory. And he patted Margie's head again. काउंटी इंस्पेक्टर ने एक बार दोबारा से मार्गी का सर थपथपाते हुए उसकी हौसला अफजाई की, उसका उत्साहवर्धन किया. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher always altogether. मार्गी इस बात को सोचकर उदास थी, थोड़ी सी निराश थी. वो ये चाह रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को हमेशा के लिए जो है यहाँ से कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं,
निकाल कर ले जाएंगे. That once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the ST sector had blanked out completely. Okay, एक बार काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसके भाई टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 महीने के लिए निकाल कर ले गए थे, क्योंकि उसमें फीड किया हुआ जो हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो भाग था वो पूर्ण रूप से खाली हो चुका था, रिक्त हो चुका था. It was total blank. So she said to Tommy, इसलिए उसने टॉमी से कहा, Why would anyone write about school? कि कोई भी जो है स्कूल जैसी चीज के ऊपर क्या लिख सकता है. टॉमी looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसकी बहन मार्गी की ओर जो है थोड़ी घमंड पूर्वक निगाहों से देखा. बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. और साथ ही वो कह रहा था कि उसके पास वो किताब थी, वो किताब जैसे स्कूल में पढ़ाई जाती थी वो हमारे जैसे स्कूल नहीं थे. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी ने इस बात को कहा कि प्राचीन काल के स्कूल थे, सैकड़ों साल पहले के स्कूल. ही एडेड लॉफ्टीली, उसने अपनी सुपीरियरिटी शो करते हुए जो है कहा उसकी बहन मार्गी को, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, और उसने सावधानी पूर्वक इस शब्द का उच्चारण किया शताब्दियों पूर्व, यानी कि a century has got 100 years. मार्गी was hurt. ये बात सुनकर मार्गी को कुछ चोट सी महसूस हुई. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. अच्छा, मैं इस बारे में नहीं जानती कि किस तरह के स्कूल उनके शताब्दी पूर्व हुआ करते थे. She read the book over his shoulder for a while, then said, मार्गी ने वो किताब अपने कंधे तक ऊंचाई पर लाकर एक बार थोड़े समय के लिए पढ़ना शुरू किया. Then said, फिर उसने कहा, anyway, they had a teacher. चाहे कुछ भी हो जाए, उनको कम से कम पढ़ाने के लिए क्लास में एक अध्यापक जी हुआ करते थे. राइट? Sure, they had a teacher. ये बात निश्चित है कि उनके एक अध्यापक हुआ करते थे. But it wasn't a regular teacher. ठीक है, लेकिन वो हमारे जैसे सामान्य अध्यापक नहीं हुआ करते थे. प्राचीन काल में जैसे सामान्य अध्यापक मनुष्य के रूप में हुआ करते थे, ऐसे उनके वर्तमान समय में नहीं थे. उनके प्राचीन शताब्दियों पूर्व स्कूलों में जो है, चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2157 की, they were having mechanical teacher at that time. But in ancient time, the teacher was a man. A man. How could a man be a teacher? एक आदमी, कैसे एक आदमी एक अध्यापक हो सकता है? बड़े आश्चर्य से उन बच्चों ने इस बात को कहा, क्योंकि उनके समय में कोई अध्यापक उनको घर आके नहीं पढ़ा रहा था. मैकेनिकल टीचर्स हुआ करते थे. They just sit in front of their computers or television set and get their lesson. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो प्राचीन स्कूलों में छात्र और छात्राओं को बातें बताई जाती थी, पाठ पढ़ाया जाता था, और पाठ की समाप्ति के बाद उनको होमवर्क करने के लिए दिए जाते थे. और साथ ही क्लास में कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस जो है वो टीचर के द्वारा स्टूडेंट से पूछे जाते थे. ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर. तो उन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि एक आदमी पर्याप्त रूप से इतना चुस्त दुरुस्त और बुद्धिमान नहीं हो सकता. ठीक है, निश्चित रूप से हो सकता है. मेरे जो पिताजी हैं वो इतना जानते हैं, टॉमी ने कहा,
कि जितना मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैक्चर, वो जानते हैं इतना अधिक जितना कि मेरे अध्यापक। इस बात को लेकर बैक्चर मीन्स टू मेक ए बैट, शर्त लगाना। इस बात को लेकर मैं शर्त जो है लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी अब इस बात को झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी इस बात को लेकर। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मैं कोई अजनबी व्यक्ति को मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो है एकदम हंसकर चीखने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी। मार्गी तुम इस बारे में ज्यादा अधिक नहीं जानती। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। प्राचीन काल में जो स्कूल हुआ करते थे, ठीक है, वो अपने घर में अध्यापक रहकर नहीं पढ़ाते थे। देयर इज स्पेशल बिल्डिंग, वो एक विशेष बनी हुई इमारत में जाते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे भी पढ़ने के लिए उस इमारत में, जिसको स्कूल कहा जाता था, उसमें वो जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चों को, सारे विद्यार्थियों को अध्यापक के द्वारा एक ही पाठ पढ़ाया जाता था, और सारे बच्चे एक ही बात को सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और निश्चित रूप से यदि वो एक ही एज ग्रुप के हों तो क्लास में बैठकर वो पढ़ते थे, राइट। बट माई टीचर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन my mother से, मेरी माँ इस बात को कहती है कि एक जो अध्यापक है उसको जो है प्रत्येक छात्र और छात्रा के मानसिक स्तर के अनुसार अपने आप को सामंजस्य बिठाना पड़ता है, और प्रत्येक जो बच्चा है उसको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, ऐसा उसकी माँ के द्वारा कहा गया। Just the same, they didn't do it that way then. तो निश्चित रूप से जो है वो इस तरीके से उस समय उस प्राचीन काल के अध्यापक नहीं कर पाते होंगे। If you don't like it, you don't have to read the book. और साथ ही मार्गी ने अपने भाई टॉमी को कहा कि यदि तुम्हें ये सब बातें पसंद नहीं है तो तुमको इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिडंट लाइक इट। मार्गी ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस किताब को पढ़ना पसंद नहीं करती। चिंतापूर्वक उसने इस बात को कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स। वो उन पुस्तकों के बारे में पढ़ना चाहती थी जो कि उसको काफी फनी, काफी मजाकिया सी प्रतीत हो रही थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. उन्होंने आधी किताब भी वो पूरी नहीं कर पाई थी, तभी उसकी माँ ने उसको पुकारा। Margie, school. Margie, it's time for you to attend your school. Margie looked up. Margie ने अपने चेहरा ऊपर उठा के देखा। Not yet, mama. माँ, मैं किताब पढ़ने में अपने आप को आनंदित महसूस कर रही हूँ। अभी मैं अपनी क्लास अटेंड नहीं करना चाहती। नाउ सेड मिस्टर जोन्स। अब मिसेस जोन्स ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब ये संभवतः तुम्हारे भाई टॉमी के लिए भी क्लास अटेंड करने का समय हो चुका है। आई सेड टू टॉमी। आगे ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर इस किताब को अपने स्कूल समाप्त होने के बाद पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said non-currently. Non-currently means अनिच्छापूर्वक, बिना किसी रुचि के। तो हाँ, तुम पढ़ सकती हो।
लेकिन उसने टॉमी ने इस बात को अनिच्छा पूर्वक कहा। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, ऐसा कहते हुए सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। एंड द डस्टी ओल्ड बुक्स टक बीनीथ हिज आर्म, और वो धूल मिट्टी में सनी हुई प्राचीन किताब जो है उसने उसके हाथों के नीचे दबाई हुई थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल वाले कमरे के अंदर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्गी का जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के जस्ट पास में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके स्कूल रूम में लगा हुआ जो मैकेनिकल टीचर था इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर और टेलीविजन, द लाइट वॉज ऑन द स्क्रीन एंड वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ मार्गी। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. हमेशा ये ऑन रहता था इसी समय सिवाय शनिवार और रविवार को छोड़कर। Because her mother said, little girls learn better if they learn at regular hours. क्योंकि उसकी माँ मिसेस जॉन्स इस बात को कहा करती थी कि छोटी लड़कियाँ अधिक अच्छे तरीके से सीख सकती हैं यदि उन्हें नियमित घंटों के अंतराल के बाद पाठों को पढ़ाया जाए। द स्क्रीन वॉज लिट अप, वो जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन थी उस पर रोशनी चमक रही थी। इट सेड, उसमें कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए आ रहे थे। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हम गणित का एक पाठ पढ़ेंगे जिसमें जो फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों वाली जो संख्याएं होती है उनको कैसे जोड़ा जाता है। एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्लीज इंसर्ट yesterday's homework in the proper slot. There was one instruction on the screen of the computer and it was asking the student to submit homework in the proper slot. Margie did so with a sigh. Margie ने रात भरी सांस लेते हुए अपना होमवर्क स्लॉट के अंदर इंसर्ट किया, अंदर डाल दिया। She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्गी सोच रही थी पुराने स्कूलों के बारे में जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came. सारे बच्चे आस पड़ोस में रहने वाले वो वहाँ पर आते थे। Laughing and shouting in the school yard. स्कूल के आंगन में या बरामदे में या स्कूल के मैदान में वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए हंसते थे, चिल्लाते थे, शोर मचाते थे, मौज मस्ती करते थे और साथ साथ मिलकर इकट्ठे एक साथ स्कूल के क्लासरूम के अंदर वो बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन की समाप्ति के बाद वो जो है साथ साथ मिलकर स्कूल जाते थे, स्कूल से घर लौटते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो पूरी क्लास के विद्यार्थी एक ही चीज को स्कूल में अपने अध्ययन के दौरान पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे विद होमवर्क, गृह कार्य करने में, एंड टॉक अबाउट इट, और यदि उनको पाठ को समझने में कोई दिक्कत होती थी तो आपस में एक दूसरे से बातचीत करके अपने डाउट्स और कंफ्यूजन को वो रिमूव कर लिया करते थे। बिकॉज द टीचर टॉट देम द सेम सब्जेक्ट, सेम लेसन वाज बीइंग टॉट, सेम subject matter was provided to them. Moreover, the same kind of homework was given to all the students. And the teachers were people. And the most interesting thing was, the teacher was human being, like ordinary man. The mechanical teacher was flashing on the screen. In the meantime, the mechanical teacher was flashing on the screen of the computer. When we had fraction 1 by 2 and 1 by 4. So, how to add fractions 1 by 2 plus 1 by 4 was being taught by the
mechanical teacher. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी इस बारे में सोच रही थी कि बच्चों को कितना मजा आता होगा, कितना अच्छा लगता होगा पुराने दिनों में जब इस तरह से अध्यापक के द्वारा उनको पढ़ाया जाता था. She was thinking about the fun they had. मार्गी सोच रही थी उस मौज मस्ती और मजाक, हंसी मजाक के बारे में जो कि प्राचीन काल में उन विद्यार्थियों के द्वारा आनंद पूर्वक महसूस की जाती थी जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे और एक मनुष्य रूपी अध्यापक उनको पढ़ाता था. तो रियली दीज टू चिल्ड्रन, मार्गी एंड टॉमी, they were just missing the fun the old time students they had during their school time centuries ago. Now this is all about this lesson. You have to go through the lesson at home. I have tried my best to explain. You can ask me later on in the live classes through your comment box. And now you have to do this activity first question answers from 1 to 7 given on page number 10 as your homework. Okay, from question number 1 to 7 you have to do very simple question. You just go through the chapter and you can find out the answer in an easy manner. That's all about this chapter. Now thank you all.